Units and measurement. In units and measurement, we have physical quantities, fundamental physical quantities, and supplementary physical quantities. The fundamental physical quantities including mass, length, time, temperature, current, amount of substance, and then we have luminous intensity. Okay, and we have also two supplementary physical quantities, which are plane angle and solid angle. Now the unit for plane angle is radian and for solid angle is steradian. These both are unitless. These both have unit, but these are dimensionless. But here mass has dimension m, length has dimension l, temperature is temperature is Kelvin, time is T, current is ampere, and amount of substance is mole, and luminous intensity is candela. Okay. Next, one important thing to note is these supplementary physical quantities. These supplementary physical quantities are unitless. Okay, are unitless quantities. Next, we have derived physical quantities, which are the ones which are derived from fundamental physical quantities like force, velocity, density, energy, etc. Now, magnitude of physical quantity is made up of two major things: numerical value n and unit u. So, n into u is equals to constant, which is n is equals to constant by u, which is n is inversely proportional to u. So, the graph would be like this of n and u. Okay, wait, let me draw it accurately. Yeah. Now, if we take nu in the y-axis and n in the x-axis, then the graph would be a straight line. Next, one important thing to note is that if nu is equals to constant, then n1 u1 is equals to n2 u2. Now, we all know the CGS system, FPS system, and NKS system. In CGS system, length, mass, and time. Length, time in both three are in seconds. So, if I write CGS, okay, length, mass, and here there is time. Time to सबका second में. When we have FPS system and MKS system. So, C का सेंटीमीटर यहाँ पे फुट आ जाएगा और यहाँ पे मीटर आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे पाउंड आ जाएगा और यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव units and dimensions. Now, one important thing to note is certain measurement quantities, like 1 day is equals to how many seconds. It is equals to 86400 seconds. 1 hour is equals to, we all know, 3600 seconds. 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 power 6 joule. 1 Armstrong is 10 power minus 10 meter. 1 millimeter is equals to 10 to the power minus 3 meter. 1 nanometer is equals to 10 power minus 9 meter. 1 picometer is equals to 10 power minus 12 meter. 1 femtometer is equals to 10 to the power minus 15 meter, and 1 micrometer is equals to 10 power minus 6 meter. 1 Newton is equal to 10 power 5 time. 1 earth is equal to 10 power minus 7 joule. Now, speed, velocity, acceleration, momentum, force, all these have different dimension. I'm giving you basics which you have to learn. Of velocity, it is LT inverse. Force, it is MLT minus 1. Now, acceleration, it is m0 lt to the power minus 2. Then we have energy, which is ml square t to the power minus 2, and work, which is ml square to the power minus 2. Now, how we derive all these physical quantities? Supposingly, we take the simplest, velocity. What is velocity? Velocity is meter per second. So, meter per second. This is L, means the length is just covered, it is meter, and second, so time is down, so T inverse. Understood? Similarly, for force, which is equals to mass into acceleration, and unit of force is kg meter per second. So kg के लिए m, meter के लिए l, by
t, so mlt minus 1. Okay, next, certain dimensionless quantities are plane angle, solid angle, refractive index, relative permeability, relative permittivity, strain, relative density, efficiency, Q factor, and there are a lot more. Next, we have conversion of units. When we write conversion of units, when we take out this, we take a hypothetical system. So what system? We take a hypothetical system, and then we convert it, and then we write it. Supposingly we have to take, supposingly they would be given that in this system you consider 1 kg, supposingly 1 unit of mass as F, and so on like this. Then you solve that. Next, we have a dimensional analysis. To applications are to check the dimensional correctness of an equation and derive relations among the physical quantities. And conversion of units. Conversion of units is same as n1 u1 is equal to n2 u2. इसमें डायमेंशनल फार्मूला लगाते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं. डिराइविंग फिजिकल क्वांटिटीज. अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, acceleration, okay, due to gravity, then derive formula for time period. So ऐसे लिख सकते हैं हम, time period is directly proportional to length to the power a and g means gravity to the power b. So time period क्या लिख सकते हैं? अब इसे m0 l0 भी लिख सकते हैं, but t to the power 1 भी लिख सकते हो, just t भी लिख सकते हो. इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का, तो एल ही रहेगा, एल टू द पावर ए. और जी का क्या हो जाएगा? जी इज़ बेसिकली द acceleration का होता है एल टी टू द पावर -2 which is b. So on solving we would get the whole answer, that is a is equals to 1/2 and b is equals to -1/2. कैसे हमने सॉल्व किया देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a is equals to a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे एल टू द पावर बी हो गया ना, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. सो a वुड बिकम 1/2 बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू -2b बिकॉज यहाँ पे टाइम -2b, so b आ जाएगा यहाँ से -1/2. ओके, नेक्स्ट वी हैव limitations of the dimensional analysis is formula derivation dependency on 3 physical quantities. Significant figures, simply example देके बता देती हूँ. 523 में 3 significant figures है. 523 इसमें 0 0 जितना भी लगा दे तब भी इसमें 3 ही significant figures रहेंगे. 1.00 इसमें 3 significant figures है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बाद आ रही है. जो पॉइंट है ना इसके, ये देखो ये पॉइंट के बाद आ रहा है ये दोनों. अगर पॉइंट से पहले आया 0.001 तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर 0.002 आर, सपोजिंगली दिस इज़ 2, सो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. 0.0003 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. एक मिनट, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी हाँ, क्योंकि हम पॉइंट के बाद देख रहे हैं. ठीक है, हम पॉइंट के बाद देख रहे हैं, उसके बाद एक नंबर है. अगर सपोजिंगली यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, ये 1 पॉइंट होता, तो इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट होते. बट यहाँ पे अगर हम 3, तो ये एक ही सिग्निफिकेंट रहेगा. ठीक है. सिमिलरली अगर टू द पावर होगा 6.25 × 10 to the power 23, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे. सपोजिंगली 0.025. अब इसमें ये जो है ये दोनों काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो दैट विल बिकम 2. ओके, अब आते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में. अगर डिजिट राउंड ऑफ करना है मोर देन 1 है तो ऑब्वियसली हम +1 करेंगे, और अगर लेस देन 1 है तो हम उसे छोड़ देंगे. सपोजिंगली 6.86 को राउंड ऑफ करना है तो क्या आ जाएगा 6.9, क्योंकि ये मोर देन 1 है. अगर 3.94 करना है तो ये वाला जो है लेस देन है, तो इसे क्या हो जाएगा 3.9. बट अगर 5 है, सपोजिंगली 14.35, ठीक है, तो इसका जो प्रिसाइडिंग डिजिट है यानी कि ये जो थर्ड नंबर है, अगर ये यहाँ पे पॉइंट है, एक मिनट, अगर ये ऑड है तो इसमें हम ऐड करेंगे यानी कि 14.4 हो जाएगा. बट अगर ये नंबर, अगर हम यहाँ पे 2 रख दिए, अगर ये 2 है तो ये 14.2 का 2 ही रह जाएगा, क्योंकि ये इवन हो जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट वी ऑफ एरर, व्हाट टाइप के एरर्स होते हैं? सिस्टमैटिक, रैंडम, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल एरर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राउंडिंग ऑफ, जितना मिनिमम डेसिमल होगा उसी में आंसर देना है। सपोजिंगली 4.321 प्लस 3.24, इनको ऐड करोगे तो 7.561 आएगा। मिनिमम है 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.56। ओके, मल्टीप्लिकेशन भी सेम 4.322 अगर ले रहे हैं, ले लेते हैं 3.7 अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो आ जाएगा 15.9914 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 16, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 है और ये दो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सिमिलरली इन डिवीजन 0.2 और ऐसे सिंपल नंबर लेते हैं जैसे कि 2.4 बाई 0.6 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो देखो, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A मीन। सिमिलरली डेल्टा A2, डेल्टा A3 टिल डेल्टा AN। ए मीन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली किसी का मीन निकालोगे तो उसको एडिशन करोगे, बट मॉड में यहाँ पे मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 एंड सो ऑन बाय n। ओके, अगर रिलेटिव एरर निकालना है यानी कि डेल्टा G बाई G नॉट, तो हम क्या लिख सकते हैं? G इज इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं लिखा रही हूँ अभी, देखो इसे बॉक्स में रख लेते हैं ऐसे। G इज इक्वल्स टू G नॉट प्लस माइनस जो भी दिया है डेल्टा G। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरर। एडिशन करेंगे सो डेल्टा C इज इक्वल्स टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, ना एरर में हमेशा एडिशन होगा, मगर डेल्टा A प्लस डेल्टा B ही हमेशा डेल्टा C की इक्वल होगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम और डिवीजन में भी, सब में ऐड ही होता है। पावर अगर रहेगा तो पावर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सपोजिंगली डेल्टा x बाई एक्स निकालना है और हमें x दिया है a to the power alpha b to the power gamma, that would become alpha delta a by a plus gamma delta b by b। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये पूरा एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब बाय c4। ठीक है, सो हमें निकालना है डेल्टा y बाय y। तो डेल्टा y बाई वाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाई b प्लस 4 इंटू डेल्टा c बाई c। परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लेंगे जैसे मैंने लिखा g इज इक्वल्स टू G नॉट प्लस माइनस डेल्टा G, so this is delta G and this is G नॉट। ओके, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते तो पहले उसमें हम लॉग पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एरर को हटाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ इफ़ वी सी द पैरेलल, जो हमारा पैरेलल कनेक्शंस होता है हमारा रेजिस्टेंस में, उसमें हम क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/Z इज इक्वल्स टू 1/X प्लस 1/Y होगा, पर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा 1/Z स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर dx प्लस 1/y स्क्वायर dy। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? फाइनली इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा Z बाई Z स्क्वायर is equal to delta x by x square plus delta y by y square for parallel connection and resistance। अब आता है लीस्ट काउंट विच इज़ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर एंड स्क्रू गॉज का भी 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर, if A MSD coincide with B VSD then A MSD is equal to B VSD। Final reading is reading minus 0 error, so least count is 1 MSD minus VSD। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं?
MSD माइनस A/B MSD, क्योंकि हम इसमें VSD को क्या लिख सकते हैं, A/B MSD। रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। स्क्रू गॉज में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें स्क्रू गॉज में इट इज़ द डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस लग रहा है मेन स्केल में। लीस्ट काउंट इज पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, रीडिंग, अगर हमको रीडिंग निकालना है तो हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू द लीस्ट काउंट। ओके, so this was a quick revision of units and measurement. Thank you.